عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدی دیوبندی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نزدیا پھر تجھ کو کیا، اور یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ تمام عوام اہل سنت، سنی حنفی بریلوی مسلک کے ماننے والے، تمام میرے عزیز میرے محترم چھوٹے بڑے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، یہ جو کال ڈیبیٹ آپ سماعت کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو معین الدین خان جو دبئی میں رہتا ہے، کچھ کام کرتا ہے شاید یہ، لیکن اس وقت جو ہے یہ اپنا مقام بہرائچ بتاتا ہے، اور یہ معین الدین خان جس سے بات ہوئی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے معین الدین خان نے پہلے آدھی ریکارڈنگ میں یہ کہتا ہے کہ میں معین الدین خان ہوں، جب یہ پھنس گیا بیچارہ بری طرح تو یہ کہتا ہے کہ نہیں معین الدین خان نہیں، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ اور تو سامعین اکرام، حقیقت دراصل میں اس نے بریلوی بن کر، اس ریکارڈنگ میں خود آپ سنیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو بریلوی کہا ہے، اور اس نے بریلوی بن کر جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ان نزدیوں کا شروع سے یہ کام ہے، نزدی چونکہ یہ گستاخ رسول اولیاء اللہ ہیں، سنیوں میں گھسنے کے لیے ان کو جو ہے کوئی طریقہ چاہیے، تو آج کل انہوں نے یہ طریقہ کہ لوگوں کے سنی حنفی بریلوی بن کے لوگوں کے بیچ میں گھسو اور سنیوں کو بہکاؤ برگلاؤ، لیکن جب تک غلامان اعلیٰ حضرت غلامان شیر سنت زندہ ہیں، سبحان اللہ، غلامان اولیاء اللہ زندہ ہیں، جب تک ان کے منصوبوں پر انشاءاللہ تعالی پانی پھیرتے رہیں گے، اور ان کو یہی کہتے رہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے الحمدللہ۔ تو سامعین اکرام لیجیے، اس میں سب سے پہلے انہوں نے معاملہ یہ ہوا، حسل کلام گفتگو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کافی دن سے جو ہے کال ریکارڈنگ نہیں آئی، تو سامعین اکرام میں چلتے چلتے بہت جلدی کم جملوں میں یہ بتا دوں کہ میرا موبائل ان نزدیوں نے چھین لیا تھا، وہ معاملہ دوسرا ہے، میرے قریبی لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ گروپ میں ایک بریلوی بن کر جاتا ہے اور یہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، نعت پاک کو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ مجرا ہو رہا ہے، نعت پاک اگر کوئی سنی حنفی پڑھتے ہیں تو اس کو کہتا ہے یہ مجرا ہو رہا ہے معاذ اللہ، تو اس طریقے سے تو پھر اس سے یہ سنیوں کو کال کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لائیے انشاءاللہ اس سے بات کی جائے، تو بات یہ کی گئی، لیکن اس سے پہلے اس کال ڈیبیٹ کو سماعت کرنے سے پہلے آئیے معاملہ سمجھے، معاملہ کیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مجاہد سنیت سید عمر رضا حشمتی کرناٹکا دامنگیرا سے، سبحان اللہ، مجاہد سنیت ہیں، ان کو اس نے فون کیا کمینے نے، چونکہ اس نے جب نعت پاک کو مجرا کہا معاذ اللہ تو انہوں نے اس کو ریموو کیا گروپ سے، لعن طعن کرا، تو اس نے ان کی ماں بہن کی، تو اقال رسول کی ماں بہن کری، تو معاذ اللہ پہلے وہ ثبوت سماعت کریں، آئیے سید صاحب کی خود زبانی جو ہے ان کی بات سماعت کریں کہ کیا معاملہ تھا جو اس معین الدین خان نے جو ہے گالیاں دی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو پارٹ 2 آئے گا، اس کال ریکارڈنگ کے بعد جو پارٹ 2 سنیں گے، پارٹ 2 میں خود معین الدین خان کی زبانی سنیں گے کہ وہ بریلوی نہیں ہے بلکہ وہ نجدی کمینہ ہے، بریلوی بن کر جو ہے وہ سنیوں کے بیچ میں گیا تھا، اس بات کو اس کے منہ سے کیسے اگلوایا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ملاحظہ کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے سید سرور رضا صاحب سے جو بات ہوئی وہ سماعت کریں کہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے اس نے ان کی ماں بہن کی گالیاں دی، اور سنی خود فیصلہ کریں، خود سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ کال ریکارڈنگ سنائی جائے گی۔ بتائیے۔ سید عمر صاحب سے دامنگیرا کرناٹکا سے جی ایک گروپ ہے، ایک جنتی 72 جہنمی، جی اس نے آپ کی کسی سے بحث چل رہی تھی، تو سننے میں ایسا آیا کہ معین الدین خان نام کر کے کوئی جو ادر کنٹری میں باہر رہتا ہے لیکن اس ٹائم بہرائچ میں ہے، جی دبئی میں رہتا ہے وہ۔
हाँ जी जी, दुबई में रहता। तो मैंने सुना है उसने आपको कुछ गालियां दी है, माँ बहन की कुछ, जी हाँ। माजल्ला। जी, तो मैं उसने जान सकता हूँ क्या वजह रह गई थी गालियां देने की? गालियां देने की वजह, उसने जी। जब ग्रुप में आया तो हमारा एक भाई था ना, तो मनखबत पढ़ रहा था, तो उसने मतलब कहा कि क्या मुजरा चल रहा है क्या ग्रुप में। तो माजल्ला रब्बिल आलमीन। माजल्ला, तो मैंने कहा तुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते पाक को मुजरा दिख रहा है क्या? हाँ वे कौन है वे तू कर बोल के मैंने उससे पूछा। जी। तो पूछने के बाद एक थोड़ी देर बहस हुई, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब तो ये गलाजत ही बकेगा और कुछ काम वाली बात नहीं करेगा, सरकारों की तौहीन करेगा, जी। तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। फिर बात हमारे भाई किसी ने जोड़ा उसको, जोड़ने के बाद फिर बहस हुई। फिर बहस होने के बाद वही जुमला इस्तेमाल किया जो पहले इस्तेमाल किया था, इस ग्रुप में क्या क्या चलता है पता नहीं, क्या मुजरा चलता है क्या, ऐसे ऐसे बातें बताया फिर उसने। तो जब मैं ग्रुप में था नहीं, हमारे शहर में सरकार चमन शाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का उर्से पाक था, उसमें मसरूफ था मैं, तो ग्रुप में ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में वो आखिर समय गाली इतनी देकर चला गया, ग्रुप से लिफ्ट ले लिया उसने। जब शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी बात चल रही थी तो उसने आपको गालियां जो दी जी वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सच वो जो सर चढ़ के बोले। सामीन इकराम, आप हजरात ने सैयद उमर रज़ा हशमती जो कि कर्नाटक दावनगीरा के हैं, आपने उनकी ज़ुबानी खुद सुना किस खबीसों ने किस वजह से गालियां उनको दी। और खबीस मैंने इसलिए कहा, इसलिए कि ये बरेलवी हकीकत में दरअसल नहीं है, ये नज़दी कमीना है, दुबई का रहने वाला, दुबई में काम करता है, रहने वाला ये बहराइच शरीफ का है किसी जगह का। तो इस नज़दी कमीना ये लोग क्या करते हैं कि बरेलवी बनकर अवाम अहले सुन्नत के ग्रुप में जाकर उनको बरगलाते हैं कि मैं बरेलवी हूँ, फला मियाँ से मुरीद हूँ। अब फिर ये तौहीनें करते हैं। कोई भी बरेलवी नाते पाक को मुजरा माज़ल्ला नहीं कह सकता, हरगिज़ नहीं कह सकता। वो अपनी जान तो देता, क्योंकि उसका तो ये कहना रहता, हर बरेलवी जो सच्चा बरेलवी होता वो तो यही कहता, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। अरे कभी ना हमसे हरगिज़ ये होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह। और तो सामीन इकराम, लीजिए आप समाअत करेंगे, ये पार्ट आप ऑडियो समाअत करें इंशाअल्लाह। उसके बाद बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा, जिसमें खुद मोइनुद्दीन खान और उसके भाई दोनों की ज़बानी आप सुनेंगे कि ये बरेलवी नहीं दरअसल नज़दी हैं। तो आइए इनकी ऑडियो, इनकी क्लिप समाप्त करें और फैसला अवाम अहले सुन्नत आपको करना है। यही ऐसे ही कहा जाता है। इन्हीं जैसे चोरों के बारे में आला हजरत सरकार फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली, ये जो तुझको बुलाता है ठग है मार ही रखेगा, हाय मुसाफिर दम में ने आना मत कैसी मतवाली है। सुभान अल्लाह, ये आला हजरत ने बहुत पहले हमें पैगाम दे दिया। सामीन इकराम, ये क्लिप आप समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। पार्ट 2 बहुत जल्द आपकी बारगाह मोहब्बत में हाजिर होगा, दुआओं में याद रखें। लीजिए आइए ये मोइनुद्दीन खान से कॉल रिकॉर्डिंग समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही है भैया, बोलो। जी कौन साहब बोल रहे हैं? मोइनुद्दीन खान साहब बोल रहे हैं? जी बताइए। किस जगह से बोल रहे हैं आप? हाँ, किस जगह से बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं? मैं अजीमुल शाह रजा बात कर रहा हूँ। क्या? अजीमुल शाह रजा बात कर रहा हूँ। अजीमुल शाह रजा, कहिए। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे बताइए काम क्या है, पहले मैं बता रहा हूँ बाद में डिटेल। काम आपकी थोड़ी बात चली थी 10-15 मिनट। हाँ तो बताइए ना, बात करिए ना। किस जगह से आप हैं? हाँ, किस जगह से आप हैं? अरे कोई जरूरी थोड़ी ना है, जो बात करनी है तो बात करो। जिज्ञे से क्या मतलब है यार आपसे? नहीं नहीं, कोई बुराई भी नहीं है बताने में। अब तो बुराई नहीं है, हम आपको नहीं जानते हैं, अपनी डिटेल्स क्यों दें? नहीं जानने की क्या, मैं अजीमुल शाह रजा बात कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी से बात कर रहा हूँ। हाँ तो यूपी से मैं भी यूपी से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बहराइच है मेरा। बहराइच? आप आप बाहर से, मतलब पहले आप व्हाट्सएप जो करते हैं तो बाहर वाले नंबर से करते हैं ना? हाँ
अच्छा, आप पूरा नाम आप क्या क्या है? जो आपने बताया वही पूरा नाम है। मोइनुद्दीन खान है? जी। अच्छा, आपका कोई दूसरा ग्रुप भी है? ग्रुप कैसा? आपका ग्रुप मतलब कैसा ग्रुप? ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं। अरे नहीं, जैसे कि आपने नेकी की दावत ऐसे कुछ करके बता हाँ हाँ है। कौन सा ग्रुप है वो? वही है नेकी की दावत, ग्रुप का नाम ही है। आप मुझे उसमें ऐड कर लेंगे? पढ़वा है। हेलो, हुआ है। देखना है ना नेकी की दावत आप किस तरीके से देखते हैं, आपका अखलाक तो कैसा अखलाक है? आप कोई ग्रुप चला रहे हैं अभी? नहीं, मैं तो उसी वाले ग्रुप में हूँ जिसमें आप रात को गालियां दे रहे थे, उसी ग्रुप में हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहने का मतलब ये है कि आपने जो मतलब कल लफड़ा हुआ इस कारण से आप आना चाह रहे हैं ना? नहीं, लफड़े के बारे में तो खैर मुझको नहीं पता, मैंने इतना डिटेल से मैं व्हाट्सएप पे नहीं रह पाता हूँ ग्रुप में। देखिए एक बात बता दें, हम उस ग्रुप में ही ना खामी है। क्या? क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं ना तो डायरेक्टली हम सारे मुस्लिम भाई हैं ना, ग्रुप में है, बताओ है नहीं है? जी बोलते रहिए आप। तो सलाम करना सब पे वाजिब है ना, सब पे कर सकते हो, फर्ज है ना सलाम करना। तो अगला बंदा आ रहा है, क्या बोल रहा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, मेरे हजमती भाइयों। अच्छा, तो ये कोई बात करने का तरीका नहीं हुआ, ठीक है? है तरीका, बताओ तुम। आप बोलते रहिए, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत संजीदगी से बात करने वाला हूँ ना, गाली गलौज में करता हूँ। हाँ, तो गाली गलौज मतलब मेरे सामने बंदा मोइनुद्दीन खान साहब, मैं बोलूँ 1 मिनट? मेरे सामने बंदा, जैसे आप अगर गेहूं बोगे तो गेहूं काटोगे, यही मेरा मामला है। जिस अंदाज में आप बात करोगे उसी अंदाज में इंशाल्लाह आपको जवाब लेके जाओगे। देखिए, कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करता हूँ, फालतू बातों के लिए पहली बात तो टाइम ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। अब आप अपनी बात करें जो आप कह रहे थे, क्या ग्रुप में क्या हुआ, आप समझा रहे थे कुछ? ग्रुप में तो बहुत कुछ हुआ है। देखिए, मैं फोन मेरा नहीं है, भैया का फोन है, मेरा नाम दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा फोन है। अच्छा। और आपका फोन बहुत देर से आ रहा था, लेकिन आपकी आवाज शायद नहीं आ रही थी। जी। अच्छा, एक बात इसके लिए वो परेशान होकर फोन रख दिए हैं। अच्छा, एक बात बताएं। तो मुझे ज्यादा नॉलेज जी नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है, भाई से नहीं करनी है, आप ही से बात करनी है मुझको। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ी आप ये बताएं कि आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? मतलब उलमाए देवबंद से ताल्लुक है आपका, या उलमाए बरेली से ताल्लुक है? मैं बरेली जमात से हैं आप? हैरत है मुझको, बरेली जमात से हैं, फिर गुरु में आप अब बरेलवी अगर हैं तो याद रखिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बरेलवी हूँ। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई। जब आप बरेलवी हैं तो क्या आला हजरत को फॉलो नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? जब बरेलवी है तो आला हजरत को ही फॉलो करेंगे, किसी दूसरे को कैसे करेंगे हम? बहुत अच्छी बात है। तो क्या सिर्फ आला हजरत के नाम से काम चलेगा कि उनकी बात भी माननी पड़ेगी? तो उनकी बात हम मानते हैं ना। देखिए, तो आला हजरत सरकार ये कहते हैं, नहीं, आला हजरत से बढ़कर नजरिया तो हमारा अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, हाँ नहीं, लेकिन अपना आपका दिमाग देखिए, आपका दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है ना। नहीं, आप हमारा दिमाग अलग हो सकता है, आपका मोइनुद्दीन भाई साहब आपका भी दिमाग अलग हो सकता है, मेरा भी अलग हो सकता है, वो तो ठीक है। लेकिन हम लोगों को दोनों दिमागों को जाना तो सिर्फ आला हजरत की तरफ निस्बत तो एक ही है ना। दिमाग तो हो सकते हैं, सही है, दिमाग 2 हो सकते हैं। मैं अपनी तरीके से देख सकता हूँ, अपनी तरफ से देख सकते हैं, लेकिन जो पैगाम जो होगा कुरान और सुन्नत का वो तो सबके लिए है ना। हाँ, सही है। ऐसा तो नहीं कुरान सुन्नत में आला हजरत ने या हदीस पाक में या कहीं मेरे नबी ने या किसी बुजुर्ग ने ये तो नहीं फरमाया ऐसा ऐसे दिमाग रखने वाले के लिए ये हुक्म है, ऐसा नजरिया रखने वाले के लिए ये हुक्म है। राइट। तो क्या आला हजरत सरकार का नाम लेते हैं तो क्या आपको आले रसूल का अदब आला हजरत सरकार ने नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तो आप आले रसूल की माँ बहन करते हैं, आप गाली देते हैं। क्या आला हजरत सरकार का फतवा सुन लो, आला हजरत सरकार फरमाते हैं जिसने किसी सच्चे सैयद की बेअदबी करी तो तीन ही हो सकता है, या तो वो जो है हरामी होगा, ठीक है, और या तो फरमाए वो जानी बच्चा होगा, और एक और जुमला उसमें दिया है। तो आप यार इतना पढ़े लिखे होकर आला हजरत को मान, मैं तो हैरत कर रहा हूँ रात। I don't know, मैं पढ़ा लिखा नहीं। Why? मैं पढ़ा लिखा नहीं। Why?
कुछ भी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप एक आले रसूल को गाली देने के लिए आ गए क्यों भाई? क्यों भैया, अभी हम यार क्या कह रहे हैं आपसे, इतने दिन से हम ग्रुप में हैं, समथिंग मंथ पूरा हो रहा है, ठीक है? उसमें हम आपको ठीक करने नहीं आया हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ठीक करने नहीं आया हूँ, ना मेरी औकात है मैं किसी को ठीक कर लूँ। ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, वो जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसको गुमराह कर दे उसको कोई पूरी दुनिया मिलकर हिदायत नहीं दे सकती। मगर मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूँ कि आप आला हजरत को फॉलो करते हैं, तो आला हजरत सरकार ने तो ये फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है, और आप फरमा रहे वाले रसूल की माँ बहन ऐसी हो। आप तो फरमा रहे सैयद साहब से कि आप अपनी माँ के पास माँ से पूछिए कहाँ लेट के आई, और तुम हरामी हलल से क्या क्या आपने बकवास कर डाली। 4 अंडा 9 रुपए का एक, तो क्या आला हजरत सरकार खुश हो गए आपकी इस बात से? 4 अंडा नहीं, 9 रुपए का एक है, 9 चौक 36 हो जाएंगे। हेलो खान अंडे वाले, एक मिनट, काम भी करना जरूरी है भैया। जी कीजिए जल्दी से, फुर्सत हुई बात कीजिए मुझसे। 30 का नहीं मिलेगा, 36 का ही होगा। 36 बोलिए। तो आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश होंगे आपसे कि मेरा नाम लेता है और मेरे फरमान से आले रसूल को क्या क्या बोल रहा है, मेरा फरमान ढूंढ रहा है। फिर कहते हो आप हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो आले रसूल को गाली गलौज देने के लिए कहाँ से पढ़े लिखे हो गए आप? तो भैया वहीं ले लीजिए ना, हमारे पास नहीं बन रहा है ना, हमारे पास अभी 3 अंडा दे दो इनको, 3 अंडा उबला दो। हाँ मोइनुद्दीन खान साहब, खुदा के वास्ते अपनी हड्डियों पे आप रहम करें कि एक आले रसूल की माँ बहन करना बहुत आला हजरत सरकार को पढ़ा नहीं आपने। फिर इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा नहीं। अरे जब पढ़ा नहीं तो उलमा के पास बैठिए, उलमा की बातें सुनिए, अदब सीखिए, अदब। हाँ, आप अपनी उस बात से, मैं तो यही कहूँगा अपनी उस बात से आप रुजू करें। ये तो नहीं लगा, न्यूज का शकल भी देख रहे हो कैसा है, जो तार वार की दिख रहा है कैसे। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ खुदा के वास्ते आपको आला हजरत की मोहब्बत का वास्ता, वाकई सच्चे बने भी हो, इस बात से आप रुजू कर लें, अपनी हड्डियों पर रहम करें। आले रसूल को आपने बहुत बड़ी गाली दी है, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं मेरे भाई। आप सिर्फ सुन्नी बरेली भी हो इसलिए आपको समझा रहा हूँ, न वरना मेरा अंदाज बात करने का कुछ और होता। तो हम किसी के बारे में सुनिए, मेरी बात सुनिए मोइनुद्दीन खान साहब, जब हम यार किसी एक बात हमको पता नहीं है, अरे आला हजरत का ये शेर तो आपने सुना होगा ना, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तो जो तेरी नस्ल पाक में जिसको आला हजरत कह रहे हैं बच्चे बच्चा नूर का, आप उसकी माँ बहन कर रहे हो यार। और सुनिए आले रसूल का अदब, आपने वो वाकया सुना होगा, बचपन से हम सुनते चले आए बरेली शरीफ में कि सरकार आला हजरत जो है पालकी में बैठे हुए जा रहे थे, तो बहुत दूर थोड़ी दूर चलने के बाद आला हजरत ने अपने मुरीदों पे जो चारों लेके जा रहे थे पालकी, उनसे फरमाया पालकी रोकिए। पालकी रोकी गई, पूछा गया हुजूर रुकने की वजह, फरमाया ये बताओ तुम में से आले रसूल कौन है। वो मजदूरों ने कहा ये सरकार आला हजरत, मजदूर से मजदूरी ली जाए, काम कराया जाता है, मजदूरी दी जाती है, उससे बिरादरी पूछने का क्या मतलब। आला हजरत फरमाते हैं नहीं मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है। फिर उसमें वो बताया जाता, वो कहते हैं कि हुजूर मैं आले रसूल हूँ, मैं गलत काम तो नहीं कर सकता, लेकिन मजदूरी करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो आला हजरत सरकार रोने लग जाते हैं, रोते रोते फरमाते हैं कि अरे तुम बैठो पालकी में, अब मैं तुमको उतनी जितनी दूर आप मुझको पैदल लेकर आए हो उतनी ही दूर मैं आपका वजन लेकर चलाऊंगा। तो आला हजरत सरकार से वो कहते हैं ये क्या बात हुई। आला हजरत सरकार कहते हैं अगर मैं आपको लेकर नहीं गया तो कयामत मुझसे पूछ लिया गया, अहमद रजा तुझको मेरी औलाद के कंधे मिले थे अपना बदन धुमाने के लिए। तो देखो आला हजरत कितना अदब कर रहे हो, तुम उनकी माँ बहन कर रहे हो। आपको किसी ग्रुप में नहीं रहना, लेकिन आप सुन्नी तो हो यार, इस बात का तो ख्याल रखो। हेलो मोइनुद्दीन खान साहब। हाँ जी बोलिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ सुन रहे। मेरी बात को आप बुरा तो नहीं ले रहे हैं? नहीं बुरा नहीं। मेरे आप जहाँ बुरा लगेगा, आपने कहा कि मैं आला हजरत को मानता हूँ इसलिए मैं नरमी में आया हूँ। मैं ये समझ नहीं रहा था कि आप आला, तो मैं समझ रहा था हो सकता कोई गैर हो, लेकिन आप जब कह रहे हो कि मैं आला हजरत को मानता हूँ तो खुदा के वास्ते आला हजरत नाम लेना काम नहीं है कि अगर उनकी बात नहीं मानी।
आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है और इस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। जिसने इसको माना उसके लिए नूर निजात है, जिसने नहीं माना उसके लिए जुल्म हलाकत है। मेरे भाई अपनी हड्डियों पे रहम करो। अगर आला हजरत को मानते हो तो आप एक बात बताओ मोइनुद्दीन खान साहब, हम खाली आला हजरत को नाम से माने उनकी बात पे हमला करें तो बताओ क्या मानना हमारा काम देगा? आप बताओ। भैया हम जो सुनते हैं वो मानते हैं। नहीं तो आप हर एक सुनते हो वो मानते हो, ठीक है। 4 उलमा से ताल्लुक भी है, हम तो उनसे बात करते हैं। वो किस उलमा से ताल्लुक है? किस उलमा से ताल्लुक है? हमारे गांव के ही हैं। आपके उलमा से आप बात कराइए, मैं उनसे बात, उनका नंबर दीजिए मुझको। क्या देखता हूँ उन्होंने आपको यही सिखाया क्या? उनसे उनका नंबर दीजिए। अच्छा, क्या आप उलमा ये सिखाते हैं, गाली देना सिखाते हैं क्या? नहीं, मैंने इतनी देर में आपको कितनी गालियां दी? नहीं, ये बात नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बताइए। उलमा कोई सिखाता है गाली देना? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, उलमा कोई सिखाता है गाली देना? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं सिखाता है। फिर आप क्या पूछेंगे उनसे? नहीं, मैं आपसे बात करूंगा मेरे से बात नहीं। तो आपने फिर आपका मतलब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं आपके उलमा जो सिखाते हैं आप नहीं मान रहे हैं उस बात को? क्या चीज? इस बात का इकरार कर रहे हैं भैया? मैं एक बात बता दूं, जिस बंदे ने गाली दी है ना वो कभी गाली नहीं बकता है, ठीक है? अच्छा, किसने गाली दी थी उस ग्रुप में? आपके नंबर पे किसी और ने दी थी? जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, गाली उन्होंने ही दिया था और उसने पर्सनल पे मैसेज किया है पहले, ठीक है? मोइनुद्दीन खान ने? हाँ। आप मोइनुद्दीन खान नहीं हो? हमने पहले भी बता दिया आपको। नहीं हूँ मैं, मेरे भैया है। आप उनके भाई हो? हाँ। और आप तो लेकिन ये अभी कह रहे थे मैं मोइनुद्दीन खान बोल रहा हूँ। हाँ, तो भैया बाद में बताया ना आपको, जो आपने बोला बरेली है, मतलब आपने बताया पूरा डिटेल, मैंने बता दिया। मेरा फोन नहीं है, भैया का था वो, बाद में बताया। आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन बताया मैंने। अच्छा, आपके हिसाब से ये ठीक है? मेरे हिसाब से? हाँ जी। देखिए, अगर मेरे हिसाब से अगला बंदा कोई कुछ कह रहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा। देखिए, मैं मानता हूँ। मैं आपको भैया देखो, जो जिसकी ये फोन है, जिसको आप बता रहे हैं ये, वो कभी गाली नहीं देता है। तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है? गाली दिया मैं जानता हूँ ना। रिकॉर्डिंग क्या करूंगा लेके? गाली तो मैं कल सुनाऊं। और मुझे भी गुस्सा आया था, मैंने भी कहा नंबर दो, मैं बात करता हूँ क्या करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, नहीं तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं कराई उनकी? कितनी देर में मोइनुद्दीन खान साहब से बात होगी? उनसे कितनी, मोइनुद्दीन खान साहब से कितनी देर में बात होगी? सॉरी, बात नहीं हो पाएगी। बात नहीं हो पाएगी? वो भी घर जा चुके हैं। घर जा चुके हैं? तो घर जा चुके हैं तो आप भी तो घर जाएंगे ना? नहीं, मैं बड़े भाई हैं छोटे भाई हो? मैं बड़ा। बड़े हो भाई, तो खुदा के वास्ते कि आला हजरत की बात को आप इतने प्यार से समझते हैं तो थोड़ा उसको भी समझाइए यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही मोइनुद्दीन खान बोल रहे हैं। आपने पहले बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो आप मोइनुद्दीन खान साहब से बात कब कराइए? सॉरी, बात नहीं हो पाएगी। बात नहीं तो इसका मतलब फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही मोइनुद्दीन खान हो? नहीं हूँ, बस वो तो आपका ईमान मेरा ईमान। चलिए ठीक, चलिए आपके हिसाब से जो गालियाँ दी वो ठीक दी हैं? जो गालियाँ दी ठीक दी हैं? नहीं। जो आले रसूल को गालियाँ हमारे इस्लाम में गाली का अलाउ नहीं है, ठीक है? इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ हमारे यहाँ। अच्छा ठीक, आप सुन्नी बरेलवी हैं, ठीक है? आपने यही कहा ना? तो आपके नजदीक देवबंदी भाभी कौन है? मुसलमान है काफिर है? आपके नजदीक देवबंदी भाभी काफिर है मुसलमान है? वो मुस्लिम हो भी है। वो मुस्लिम है। और आला हजरत तो फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? भाभी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, आप मुसलमान है? वो मतलब मुसलमान नहीं है वो। तो आला मेरे नबी तो फरमाते हैं कि वो जो है आला हजरत तो फरमाते हैं वो काफिर हो मुर्तद है। नहीं, मुझे ये बताइए क्या आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मेरी बात मत कीजिए, किसने बनाया? मेरी बात मत कीजिए। आपने कहा मैं आला हजरत को मानता हूँ, नहीं बनाया? तो आला हजरत पर उंगली उठाइए, आला हजरत पे बोलिए, मैं देखूँ आपका जिगर कितना बड़ा, मैं देखूँ आपका जिगर कितना बड़ा है। मैं किसी आला हजरत फरमाते हैं देवबंदी भाभी काफिर हो मुर्तद हैं। वो यहीं आके यहीं बना है, ठीक है? अल्लाह ने नहीं बना के भेजा है किसी को। मैं क्या कह रहा हूँ? आला हजरत फरमाते हैं देवबंदी भाभी काफिर मुर्तद हैं। क्या आप मुसलमान क्यों कह रहे हो? अच्छा, मेरे नबी ने भी बनाया। किसको बनाया? किसको बनाया? मेरे नबी फरमाते हैं हदीस पाक में फरमाए मेरी उम्मत 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। हाँ, 73 फरमाते, सुनिए, जब नबी फरमाते हैं 73 होंगे 72 जहन्नम में जाएंगे, तो आप 72 को जन्नत में ले जाने के लिए क्यों जोड़ लगाए जा रहे हो?
नबी फरमाते हैं 72 जहन्नम में जाएंगे, आप क्यों जोर लगाए पड़े जन्नत में ले जाने के लिए? क्या नबी का फरमान होगा कि आपकी बात चलेगी? क्या जो नबी का फरमान होगा वो चलेगा, मेरा नहीं चलेगा, लेकिन हम क्या कहेंगे? तो देवबंदी भाभी आपकी नजर गुस्ताख नहीं है अल्लाह उसके रसूल के? गुस्ताख वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को ना माने, वो गुस्ताख है। जो मानता है वो गुस्ताख है। आपके वालिद का क्या नाम है? आपसे क्या ये अरे कोई भाई बताएं तो सही, बताएं तो सही, मैं अपने वालिद का नाम बता दूं? नहीं, जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं। तो अच्छा आपका नाम क्या है? मिस्टर शाहरुख मलिक। एक बात बताइए, कोई ऐसा कहे मोइनुद्दीन खान की आंखें ऐसी हैं जैसे मेरे यहाँ सुअर की हैं, तो आपके मोइनुद्दीन भाई की तारीफ करिए या बुराई करिए? औकात में रह के बात करो। क्यों बुराई हो गई? अभी मैंने सुने बुराई लगी, बुरा लगा ना आपको? अभी फोन रखो। अरे भाई बुरा लगा ना आपको? बुरा लगा ना? बुरा लगा ना आपको? हेलो, 6 मिनट बाकी है। अरे बुरा लगा ना आपको? अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतनी बताइए, खुदा के वास्ते आपको आला हजरत की मोहब्बत का वास्ता अगर सुननी हो, बुरा लगा ना आपको कि नहीं? नहीं, अभी तुम्हें गाली देंगे नहीं, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? ठीक है, गाली हुई ना ये? ऐसे आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए आपकी नजर में? हाँ, ऐसे आदमी को जो आपके भाई की आंखों को सुअर के जैसा बोल रहा, उसको क्या सजा मिलना चाहिए आपकी नजर में? वो आपको समझदार है। आप क्या करोगे अगर आपको सामने मिल जाए? आप क्या करोगे? 2-4 लगा देंगे। 2-4 लगा दोगे ना? आपके भाई की आंखें बोले सुअर की जैसी, तो 2-4 लगा दोगे है? और अशरफ अली थानवी ने किताब हिफ्जुल ईमान में लिखा, नबी का इल्म गैब ऐसा है जैसा जानवर सुअर पागलों का है, तो उसके लिए बोल रहे मुसलमान है वो, यानी भाई की मोहब्बत आपके लिए ज्यादा है, नबी की मोहब्बत नहीं। चलो अभी फोन रखो। नहीं, जवाब दो पहले। भाई की मोहब्बत पहले है? भाई की मोहब्बत पहले है कि नबी की मोहब्बत पहले? पहले नबी की मोहब्बत। तो नबी की मोहब्बत पहले, तो भाई के लिए 2-4 लगा रहे हो हैं? और अशरफ अली थानवी ने किताब हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 15 पर लिखा, नबी का इल्म गैब ऐसा है जैसा जानवर सुअर पागलों कुत्तों का है, तो क्या वो नबी की तौहीन नहीं है? चलो अच्छा, फोन रखो। नहीं, जवाब दो। फोन रखो। अरे जवाब दो। भाई की मोहब्बत का नाम ईमान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं होगा जब तक मुझसे तमाम कायनात से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले। ये नहीं फरमाया तुम्हारे भाई से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले तो मुसलमान होगा। भाई की आंखें सुअर के जैसे बोल दे, रखना 2-4 लगाने को तैयार, और नबी की गुस्ताखों को अपने सर पे बिठाने को तैयार है। ये मोहब्बत है? ये ईमान है तुम्हारा? ये बरेलवियत है? अरे ये सुलह कुल्लियत है, ये वहाबियत की पहली सीढ़ी है, सुलह कुल्लियत है, सुलह कुल्लियत। समझ रहे हैं? क्या आप अगर आला हजरत होते ना, अगर आप बरेलवी होते तो आला हजरत का पैगाम ना भूलते। आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खूब तमीद ईमान शरीफ में फरमा गए हैं, और आप लोग ऐसी बातें कर कर जो है कैसी कैसी बातें फैलवा दी हैं। सुभान अल्लाह। ये हाल है। देखिए फोन काट करके ये चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन कट करके चले गए हैं। ऐसी बात है सलमान साहब, ये फोन कट करके चले गए हैं। मेरी तरफ आवाज नहीं आई भाई, आप अपनी तरफ से लाइन पे हैं कि नहीं? चले गए। अरे आला हजरत सरकार का मानने वाला होगा, आला हजरत सरकार का मानने वाला होगा तो आला हजरत का पैगाम भी रखेगा। समझ रहे हैं? फरमाते हैं आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकार की मोहब्बत को तमाम जहान पर तकदीम, तो उसकी आजमाइश का सही तरीका यही है कि तुमको जिन लोगों से कैसी ही ताजीम, कैसी ही दोस्ती, कैसी मोहब्बत का अलाका हो, जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीर, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई भी आ गए जनाब, ये भाई के लिए मर गए। अब थानवी को काफिर करने से जबान गूंगी हो गई, कहते हैं हम बरेलवी है। ये सुलह कुल्लियत है, सुन्नियत नहीं है। तुम्हारे भाई, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे असाब, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे हाफिज, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे वाइस वगैरह वगैरह कोई भी चब्बा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो ये आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे बाप नहीं फरमाते हैं, असलन तुम्हारे दिल में उसकी अजमत, उसकी मोहब्बत का नामो निशान ना रहे, फौरन उनसे अलग हो जाओ, उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, उनकी सूरत, उनके नाम से नफरत खाओ, फिर ना तुम अपने रिश्ते, इलाके, दोस्ती, उल्फत का पास करो, और न कि उसकी मौलवियत, मशीखियत, बुजुर्गी, फजीलत को खतरे में ना लाओ। और देखिए आला हज़रत फरमाते हैं, ये खबीस कुछ और बोलते हैं, वो आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि आखिर ये जो कुछ भी था सरकार की गुलामी की बिना पर ही तो था,
जब यह शख्स उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ फिर हमें उससे क्या अलाका रहा। उसके जुब्बे, ये आला हजरत है, आला हजरत, उसके जुब्बे अमामे पर क्या जाएं? क्या बहुतेरे यहूदी जुब्बे नहीं पहनते, अमामे नहीं बांधते? उनके नाम इल्म व ज़ाहिरी फजल को लेकर क्या करें? क्या बहुतेरे पादरी व कसरत फलसफी बड़े बड़े उलूम फनून नहीं जानते? अगर या नहीं, बल्कि तुमने सरकार के मुकाबिल तुमने उसकी बात बनानी चाहिए, जैसा कि आज बनाई जा रही है। जैसा कि इसने, ये मोइनुद्दीन खान ही था लेकिन ये झूठ बोला कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। इसने जैसे कि अपने भाई की बात आई, मैंने कहा सामने मिलो तो क्या करेगा, तो कहता है 4-5 लगा देंगे। और हिफ्जुल ईमान की इबारत से बोल रहा है चल फोन रख। इससे पता चला गया कि ये आला हजरत ने जो फरमाया था वो हक फरमाया था कि सरकार के मुकाबले में किसी और की बात बनानी चाहिए, जैसे कि इसने थानवी की बात बनानी चाहिए। आगे आला हजरत फरमाते हैं सरकार के मुकाबले में तुमने किसी की बात बनानी चाहिए तो उसने हुजूर से गुस्ताखी की और तुमने उससे दोस्ती की या उससे रिश्तेदारी की या बुरे से बुरा उसको न जाना या बदतर से बदतर उसको न जाना या उसे बुरा कहने पर बुरा माना। इसी कदर कि तुमने इस काम में बेपरवाही मनाई या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से सख्त नफरत न आई तो लिल्लाह अब तुम ही इंसाफ कर लो कि तुम ईमान के इम्तिहान में कहाँ तक पास हुए। कुरान और हदीस ने यही सिखाया है। इसीलिए आला फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। अमा इतना भी हो कोई जो आह करे दिल से। इन्होंने सैयद हसन साहब को गालियां दी है, जबकि आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो आला हजरत सरकार फरमाए क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की है, ज़हराए कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सामईने इकराम, अब ये फैसला आपको करना है कि आला हजरत का नाम लेने से काम चलेगा कि आला हजरत की बात पे भी अमल किया जाएगा। इसीलिए आला हजरत सरकार अपनी वसीयत में फरमाते हैं मेरा दीन और मजहब मेरी किताबों से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। जिसने इसको माना उसके लिए नूर व निजात है और जिसने नहीं माना उसके लिए जुल्म व हलाकत है। सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सामीन इकराम, सुना आप लोगों ने अपने कानों से सुना कि जब इसकी भाई की बात आई तो ये कहता है कि अगर मेरे भाई की आंखों को किसी ने स्वर्ग जैसा बनाया, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके 2-4 लगा दूंगा। लेकिन जब हिफ्जुल ईमान की वही इबारत जो उसके भाई पर फिट करी तो गाली देने को तैयार, लड़ने को तैयार, मारने को तैयार। अब वही बात हिफ्जुल ईमान में अशरफ अली थानवी ने लिखी तो कहता है रखो, तुम मुझे गाली दे रहे हो, रखो फ़ोन रखो। कैसे फ़ोन काट करके भागा, जैसे कि शेर को देखकर गीदड़ भागते हैं, समझ रहे हो, जैसे कि कसाई को देखकर दूसरे जानवर भागते हैं, इस तरीके से ये भागा। सामीन इकराम, अब फैसला आपको करना है। अब फिर बाद में उसके मुझे अभी पता, अभी इंशाल्लाह उसके बाद फिर उससे बात हुई तो उसके मुंह से खुद कबुलवाया गया कि वो पता लगा हकीकत में दरअसल वो बरेलवी सुन्नी है ही नहीं, दरअसल में वो वहाबी है। तो सुन्नियत में सुन्नियों को गुमराह करने के लिए उसने नापाक कोशिश की। लेकिन जब तक गुलामान आला हजरत, गुलामान शेर सुन्नत, गुलामान मुस्तफ़ा, गुलाम गौस ख्वाजा बरज़ा ज़िंदा हैं, इंशाअल्लाह ताला ये नापाक कोशिश उनकी नापाकी ही होती रहेगी, क्योंकि वो नापाक है। फरमाया पाक चीज़ पाक लोगों के लिए, नापाक चीज़ नापाक लोगों के लिए। सामीन इकराम, इंशाअल्लाह 2-4 रोज़ कबल पार्ट 2 आप समाप्त करेंगे, उसमें ख़ुद देखेंगे, इसी की ज़बान से आप सुनेंगे कि इसने ख़ुद कबूला है कि सुन्नी नहीं बल्कि ये वहाबी है। सुन्नी बनकर सुन्नियों में सिर्फ उनको धोखा देने के लिए जाता है। सामीन इकराम, बस इस शेर के साथ कि चिराग जला के रख दिए हैं मैंने राहों में, चिराग जला के रख दिए हैं मैंने राहों में, अब कोई राह भटके ये उसकी अपनी किस्मत है। और मेरे दिल की सदा है ये मेरी आवाज़ नहीं है, मेरे दिल की सदा है ये मेरी आवाज़ नहीं है। इसे तुम न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा, इसे तुम न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा।